So, good morning, students. Today we will start a new chapter, which is the fundamental rights and fundamental duties. So, first we will discuss what are the fundamental rights and what are the fundamental duties. As the name suggests itself, fundamental rights and duty. Rights meaning the rights which you have, and the duties meaning what are the duty given to you by the constitution, because in our constitution there are mentioned fundamental rights and fundamental duties. So fundamental rights are those provisions given in the constitution which are essential for the human development. For example, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि राइट टू इक्वलिटी, किस जितने भी जो मासेस रह रहे हैं, जो जितने भी पॉपुलेशन रह रहे हैं, ऑल दीज आर इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, जेंडर, कास्ट, क्रीड। इनके डिस्क्रिमिनेशन के बिना जितने भी है सारे इक्वल्स है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिया गया है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थर्ड पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी दिए गए। ठीक है, सो डिटेल में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। सो एक ओवरव्यू पता चल गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। ठीक है, okay students, so if you have any doubt you can ask at the end of the lecture. So end of the lecture time will be given for doubt session. So एक ओवरव्यू हमने ले लिया है कि व्हाट आर द फंडामेंटल, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। सो नेक्स्ट we will delve into the topics now. What are the meanings of term rights? Rights are those essential condition of life, meaning rights are those provisions which are essential for human being day to day life में, meaning if we want to live life with dignity, these fundamental rights are the essential part. So what are those provisions given in constitution that we will discuss? Okay, that overview we have already taken. So next, fundamental rights. The 6 rights contained in part of the Indian Constitution. We have already discussed that the fundamental rights are given in the part 3 of the Constitution, and fundamental duties are in part 4 of the Constitution of India. They are in the Constitution and are incorporated in fundamental law. Rights are enforced, that we will discuss, enforceable in the court of law and other things that we will discuss. But first we will discuss fundamental rights. Say part 3 of the Constitution, article 14 to 18. Part 3 of the Indian Constitution contains 6 type of fundamental rights. So first type of fundamental right is right to equality. Right to equality, article 14 to 18, 14 to 18 in the Constitution deals with the right to equality. ठीक है, right to equality meaning कि government shall not discriminate on the basis of religion, caste, sex, place of birth. इन सब के बेस में, इन सब के बेस पे गवर्नमेंट क्या है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। सो आपको आर्टिकल वाइज डिटेल में नहीं जाना है, बट बेसिक ओवरव्यू
लेना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट टू इक्वालिटी में क्या है, राइट टू इक्वालिटी इसमें क्या है, प्रोविजंस दिए गए। फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो गवर्नमेंट के लिए दिए गए हैं और कुछ जो है वो इंडिविजुअल्स के, कि गवर्नमेंट अगर कहीं भी कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेगी, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस की गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉय हायर करती है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए। सो अगर वो एम्प्लॉयमेंट हायर कर रही है गवर्नमेंट, तो जेंडर बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, कि फॉर एग्जांपल कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है, राइट नाउ मोर देन 30 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स जो है, अगर किसी भी स्टेट्स में जॉब वगैरह निकलती है तो उसको इस बेस पे नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकती कि आप जो है उस रीजन से है। फॉर एग्जांपल कि अगर हरियाणा गवर्नमेंट कोई जॉब निकालती है तो उसको ये करके मना नहीं कर सकती कि आप तो देश के हैं, आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते, या कोई प्राइवेट कंपनीज है वो ये कह के मना नहीं कर सकती कि हम ओनली हरियाणा गवर्नमेंट वालों को जॉब देंगे बट बाहर वालों को, हरियाणा के जो रेजिडेंट्स है उन्हीं को जॉब देंगे, बाहर वालों को नहीं दे सकते। या कि आप जो है वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन बेस से हैं, हम इस रिलीजन को जॉब नहीं देंगे, या आप किसी कास्ट स्पेसिफिक कास्ट से हैं तो उसको नहीं देंगे, या आपका जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हम ओनली विमेन को जॉब देंगे या ओनली मैन को देंगे, विमेन को नहीं देंगे। तो उस बेस पे राइट टू इक्वालिटी का मीनिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वे में, कॉन्स्टिट्यूशन के व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो सेकंड पार्ट आता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या रहता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स दिए गए हैं कि किसी को कि राइट टू फ्रीडम, कि अगर किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है या किसी को बोलने से गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनियंस रहते हैं तो गवर्नमेंट यूनियन बनाने से मना नहीं कर सकती। अगर आप पीसफुली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको डिनाई नहीं करेगी, वहां से जबरदस्ती हटा नहीं सकती अगर पीसफुली गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुछ टाइम पहले किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट फोर्सफुली हटा नहीं सकती उधर से जब तक वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडेफिनेट टाइम पीरियड्स के लिए, ठीक है। सो अगर आप कुछ न्यूज़पेपर में या प्रिंट करते हैं या कुछ पब्लिश करते हैं, सेंसर नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दिया गया है। फॉर एग्जांपल कि चाइल्ड लेबर है, कि चाइल्ड लेबर को कोई जो है वो अनऑथोराइज इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं करवा सकते, जैसे 14 ईयर से लेस देन 14 ईयर या उससे लेस एज जिनकी है चाइल्ड को, उनको डोमेस्टिक वर्क या इंडस्ट्रीज में नहीं डिप्लॉय कर सकते। किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई जो है वो स्पेसिफिक टाइप का जॉब नहीं है, इलीगल वे है, ठीक है। उसको जो है गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में राइट दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या होता है कि इंडिविजुअल कौन सा रिलीजन जो है वो फॉलो कर रहा है वो उस पे उसका चॉइस है। आप किसी को फोर्सफुली, अगर कोई एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ये उसका चॉइस है, ठीक है। बट फोर्सफुली कन्वर्जेंस जो है, फोर्सफुली अगर कोई कन्वर्ट कर रहा है किसी को एक रिलीजन से दूसरे में,
तो उसको गवर्नमेंट क्या है स्पेशल रेगुलेशन से रोक सकती है। बट किसी को अगर कोई अपनी इच्छा अनुसार एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में स्विच हो रहा है तो उसको मना नहीं करता। कल्चरल एंड फिफ्थ टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या सेक्शंस है उनको क्या है कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कि जो लैंग्वेज है वो कम एरिया में बोली जाती है या माइनॉरिटी है जिन रिलीजन्स का पॉपुलेशन कम है उनको राइट्स दिए हैं कि वो अपने कल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। कल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है। सो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है लाइक मदरसा या गुरुकुल जो है वो इसी बेस पे बनाए गए हैं क्योंकि वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंडर में बनाए गए। ठीक है। फिर लास्ट नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन रहता है कि which of the article is the fundamental of all the fundamental rights तो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 is the fundamental of all the आर्टिकल 32 is the fundamental of all the fundamental right। ये क्यों है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। अगर इनमें से कोई भी राइट जो हमने 1 2 3 4 5 टाइप के फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए हैं अगर गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट सकते हैं। तो इस आर्टिकल के अंडर में रेमेडी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। ये तो था जस्ट ओवर आर्टिकल वाइज हमने ओवरव्यू लिया कि 6 टाइप ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स हैं। सो आपको आर्टिकल नहीं रिमेम्बर करना है बट ऑल जितने भी प्रोवाइड्स किए हैं 6 टाइप की राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये आपको रिमेम्बर रखना है। ठीक है। सो एक टर्म enforceable की फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मीनिंग कहते हैं कि 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट वी हैव डिस्कस्ड 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको रेमेडी यह है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। सो बाकी फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो स्टेट्यूटरी राइट होते हैं उसमें क्या है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं मूव कर सकते। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको गवर्नमेंट कहीं जो हमने पैरामीटर डिस्कस किए कि जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इस बेस पे गवर्नमेंट आपको कोई सर्विसेज डिनाई करती है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, कल को आपको न्यूज़पेपर में कुछ प्रिंट कर न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज पब्लिश के लिए गवर्नमेंट मना कर देती है। सो आपको पता है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम टू स्पीच अंडर अंडर आर्टिकल 19 to 22। सो उस केस में क्या है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। बट क्रिमिनल केस में क्या होता है हायरार्की ऑफ जुडिशियल सिस्टम है कि फर्स्ट पहले आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में जो है वहां करना पड़ेगा। अगर उससे आप उसके डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं है देन यू हैव द राइट टू मूव इन द हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट। देन इफ हाई कोर्ट पासेस द ऑर्डर और हाई कोर्ट के बाद में आप क्या है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है तो यू हैव द चॉइस टू मूव डायरेक्टली इनटू हाई कोर्ट और टू सुप्रीम कोर्ट।
Supreme Court is the protector of fundamental right. Supreme Court, Supreme Court is protector of fundamental right. Okay. So fundamental rights है एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मीनिंग यही है कि एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो आप डायरेक्टली जो है वो कोर्ट में मूव कर सकते हैं, वेदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बट जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स क्या है, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी और डीपीएसपी क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर। बट राइट नाउ जस्ट की ओनली फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, rights which other than fundamental duties and directive principles of state policies are not enforceable in the court of law. Clear? So next we will discuss characteristic features of the fundamental rights. So fundamental characteristics and features जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी ऑलरेडी डिस्कस फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर enforceable in court of law. Courts are the guardians and protector of the fundamental rights. They can grant remedies whenever these rights are violated by anyone. So enforceable meaning you can directly approach to High Court or Supreme Court whenever your fundamental rights are violated. Some rights for aliens also. What do you mean by aliens? So aliens are those individuals who are not the citizen of India. Aliens are those individuals who are not the citizen of India. Okay? So fundamental rights, all the fundamental rights are not applicable for the aliens, but some of the fundamental rights are applicable to the aliens and citizen as well. Citizen के लिए तो है ही सारे fundamental rights, but कुछ fundamental rights जो है वो alien के लिए भी है। For example, Article 15, 16, 19, 29 and 30. These are the articles which are applicable only to the citizen of India. ठीक है, these 5 rights under Article 15, 16, 19, 29 and 13. These 5 are applicable only to the citizen. But apart from this article, other article are applicable to the alien as well. ठीक है, so aliens are those individuals or those who are not the citizen of India. Okay. So our constitution guarantees the some of the citizens and aliens alike the right to life and liberty, the right to freedom of religions and conscience, and the right against exploitation. The remaining 3 rights are given only to the citizen of India. So only the 5 rights we have discussed are applicable to the Indian citizen only. Apart from these 5, or are applicable to the citizen as well as aliens also. Rights are universal. These fundamental rights are secured to all the citizens without any discrimination of that we have already discussed. Universal meaning without any discrimination. Caste, creed, color, sex, place of birth, residence, education, property. वायलेट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिया है उसे क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज इन डेंजर। अगर आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिया है, तो अगर लगता है गवर्नमेंट को कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज इन डेंजर, उस केस में क्या है, गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, और अगर वॉर लाइक सिचुएशंस है,
कहीं वॉर चल रहा है, फॉर एग्जांपल कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का डिस्कशन किया। अगर कहीं वॉर चल रहा है, ऊपर से बॉम्ब गिर रहे हैं, और उस केस में क्या आप ये गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको परमिशन दे कि यू कैन फ्रीली गैदर और ऑर्गेनाइज एनी मीटिंग? जब ऊपर से बॉम्ब गिर रहे हो उस केस में इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना। सो उस ये क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि इस केस में गवर्नमेंट क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, ठीक है। सो that is in the right are not absolute. These fundamental rights are not absolute. These rights are subjected to some reasonable restriction. Reasonable restriction की कुछ restriction government impose कर सकती है, as may be necessary for the general welfare, public interest, decency, morality, security, and integrity of the nation. These rights are not licensed, but freedom to be exercised for one own and common good. राइट, जो राइट्स है ये आपके, ये लाइसेंस नहीं मिला है कि आपको कुछ भी करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ करते हैं उसका सोसाइटी पे इफेक्ट होता है, जो आप एक्ट करते हैं उसका सोसाइटी पे इफेक्ट होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कशन किया कि फंडामेंटल राइट्स आर जो है वो एक डिग्निटी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग को, कि उनको फ्री स्पेस देते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी से, इनिशिएटिव से आप जो कर सकते हैं अच्छा करिए, बट विदाउट हार्मिंग द अदर वन इन द सोसाइटी। राइट्स में बी curtailed through amendment. These fundamental rights are subjected to amendment as ruled by the Supreme Court in famous Kesavananda Bharati case. These rights are not sacrosanct. Meaning कि फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया अडोप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, ठीक है। सो 1950 में जो फंडामेंटल राइट्स थे, क्या वो हमेशा के लिए हो गए? वो चेंजेस भी हो सकते हैं ना कभी। सो फंड अमेंडमेंट का मीनिंग रहता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका मीनिंग ये है कि rights may be curtailed through amendment, not only curtailed but they may expanded as well, कि राइट्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि इनिशियली क्या है, राइट टू एजुकेशन जो है अंडर आर्टिकल 21A कैपिटल ए, अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए, ठीक है। सो इनिशियली दीज and the right to education was not the fundamental right. Initially it was the directive principle only, but later on these right to education was given as a fundamental rights under article 21 capital A. So amendment के थ्रू गवर्नमेंट इनमें चेंजेस कर सकती है। सो केशवानंदा भारती केस का जो इसमें डिस्कशन हुआ है, ये केशवानंदा भारती वाज द फेमस एडवोकेट, एंड केशवानंदा भारती केस वाज द लार्जेस्ट केस इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एडवेंट हुआ। सो उतना डिटेल में नहीं जाना, बस जस्ट रिमेंबर कि अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट कैन एक्सपेंड और कर्टेल द फंडामेंटल राइट्स। राइट्स आर सस्पेंसिबल इन इमरजेंसी। सो अगर इमरजेंसी मीनिंग कि इमरजेंसी क्या रहता है कि अगर कुछ अनसीन सिचुएशंस अराइज होता है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गवर्नमेंट को पावर दी है कि उस टाइम स्टेट में या कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। जैसे अगर आर्म्ड रेबेलियन हो गया इंडिया में, विद इन द इंडिया, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आर्म्ड रेबेलियन कर दिया इंडिया में, तो उस केस में क्या रहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सके। या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया कि आउटसाइड कंट्री ने वॉर कर दिया, जैसे 1962, 1965, 1971 इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर्स जो हुए,
वो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन था, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया ना कि अंडर आर्टिकल 19 राइट टू असेंबल, राइट टू गैदर, वो सब क्या है, जब अगर डिस्टरबेंस हो, कुछ आर्म्ड रेबेलियन हो गया, तो उस केस में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। Critical assessment and significance of the fundamental rights. The list of fundamental rights is not all comprehensive because such rights as the right of work, right to rest, and leisure, right to financial help in case of old and employment are not given. क्रिटिकल असेसमेंट का मीनिंग ये है कि जो क्रिटिक्स थे, जो ओनली जो क्रिटिक्स के जनरली व्यू रहते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं। तो वही है फंडामेंटल राइट्स के, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बल्कि डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अगर सारे आपके जो राइट्स हैं उनको हम सोचें कि एक बुक में कुछ नहीं इंक्लूड करते, जैसे अभी हमने 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किया, बट कुछ बोलते हैं कि उसमें और भी आर्टिकल्स ऐड होने चाहिए, ठीक है, और कुछ भी जो आपका ड्यूटी है, राइट टू लाइफ, वो भी ऐड होना चाहिए। बट क्या है, सब कुछ अगर लाइफ को कैसे जी रहे हैं, वो हर एक चीज अगर हम किसी बुक में स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहें तो वो पॉसिबल्स नहीं, ठीक है।